Hello students, welcome to Physics Bouquet. In this video, we will discuss about Kirchhoff's law of electricity. Kirchhoff's law consists of laws. There are two laws put forth by Kirchhoff. One is called KCL, that is Kirchhoff's current law, and another is KVL, Kirchhoff's voltage law. We will solve some numerical problems basing on those two laws. Let us proceed. Before that, just have an hint. Kirchhoff's first law, that is called junction law also, that states that algebraic sum of total current at a junction is zero. That means net incoming current is equal to net outgoing current. That is Kirchhoff's first law. And Kirchhoff's second law, algebraic sum of voltages in a loop, in a closed loop, is equal to 0. So let us start. In short, for junction law we say summation of I is 0, and Kirchhoff's voltage law summation of V is 0. So first question is like this. ऐसा एक फिगर दिया हुआ है, ये 15 एम्पियर करंट, ये 3 coming towards it, 3 ampere current is coming towards it, and 5 ampere current is coming towards it. I is outgoing current. So from this figure we have to calculate the value of I. So given such a figure, generally we are confused, because in Kirchhoff's junction law we read incoming currents, we are taking a junction like this. We take junction to be a point, but here it is a square loop. So whether it is a square loop or a point, whatever it may be, we have to remember always the concept that total incoming current is equal to total outgoing current. So just look at the figure and find out the total incoming current, total outgoing current. For you see this I amount which is to be calculated, it is an outgoing current, and rest of the currents 15 ampere, 3 ampere, 5 ampere, all are incoming current, all are incoming. So 15 plus 3 plus 5, it is 15 plus 3 plus 5, so 23 ampere. मतलब 23 ampere is current, 23 ampere current is coming towards, and I is the only outgoing current. So total incoming current should be equal to total outgoing current. So what will be I? Then I will be 23 ampere. This is the answer.
Let us take another problem. Question number 2. Question number 2 is like this. It is given a 2 ohm resistor, a 4 ohm resistor, a 20 volt है at point A, and here it is given 5 volt. Here is another resistor of 2 ohm, and here a switch is there, and it is earthed. हमें कैलकुलेट करना है कि ये जो करंट 2 ओम के थ्रू में जा रहा है, स्विच को ऑन करने से कितना करंट इसके तरफ जाएगा, ये है क्वेश्चन. ये 20, ये 5, दिस इज 2 ओम, दिस इज 4 ओम. Suppose this is current I1, this is current I2, and this is I3. ये आर्थ है. सपोज इसको कनेक्ट कर दिए, स्विच ऑन कर दिए, ये आर्थ है. आर्थ मतलब इट इज एट जीरो पोटेंशियल. सपोज ये जो पॉइंट है, ये सपोज पॉइंट सी है, ये सपोज V वोल्ट है, ये पॉइंट का पोटेंशियल V वोल्ट है. तो हमारे किरचॉफ जंक्शन लॉ के हिसाब से इसको जंक्शन हम ले जाएंगे, तो ये इनकमिंग करंट I1, ये भी इनकमिंग करंट I2, ये आउटगोइंग करंट I3. सो हमारे किरचॉफ लॉ के हिसाब से I1 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3. व्हाट इज I1? सी, ये और ये पॉइंट के बीच में 2 ओम लगा हुआ है. ये दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ये 20 है. हम इसको V लिए तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? 20 माइनस V. सो 20 माइनस V और रेजिस्टेंस 2. सो V by R, it will give I. So 20 minus V by 2 will give us I1. Similarly I2 क्या होगा? 5 minus V by 4, 5 minus V by 4 is equal to I3. This is V minus 0, V minus 0 by 2. इसको सॉल्व करते हैं. 20 by 2 10 minus V by 2 plus 5 by 4 minus V by 4 is equal to V by 2. V निकाल लेते हैं. सो 10 प्लस 5 by 4, 5 by 4 कितना होगा? 1.25 is equal to V by 2. ये दोनों को इस तरफ ले जाते हैं, V by 2 प्लस V by 4. तो कितना आएगा? V by 2 प्लस V by 2, V हो जाएगा V प्लस V by 4. सो 5V by 4. 10 plus 1.25, 11.25 is equal to 5V by 4. It will be 1.25 V. Then V will be 11.25 by 1.25. So it will be how much? 1125 by 125. 5 में कैंसिल कर लो. 25, 5 2 जार 10, 5 2 जार 10, 225, so 9. That means V is 9 volt. मतलब ये पॉइंट का वोल्ट है
पोटेंशियल है 9 वोल्ट। तो अभी I3 निकाल सकते हैं। ये 9 वोल्ट हुआ, ये 0 वोल्ट अर्थिंग का, तो I3 क्या होगा? तो अभी I3 हो जाएगा 9 माइनस 0/2, मतलब 9/2, that is 4.5 ampere. So 4.5 ampere is flowing through the 2 ohm when switch is made on. So this is another application of Kirchhoff's current law. अभी एक प्रॉब्लम लेते हैं किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ को बेस करके। वहाँ जंक्शन लॉ भी लगेगा और वोल्टेज लॉ भी लगेगा। तो ऐसा एक प्रॉब्लम लेते हैं और क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 6 ओम का रजिस्टर है, another 3 ohm resistor is there, और दोनों का बीच के पॉइंट से निकला है यहाँ, और एक 3 ओम रजिस्टर है। यहाँ एक सेल लगा हुआ है जिसका EMF 15 वोल्ट है, और यहाँ है 30 वोल्ट का। हमको पूछा है ये ब्रांचेस, ये जंक्शन पॉइंट्स का नाम दिया हुआ है फिगर में, ABC और ये D है। तो ये BD हमको क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द करेंट थ्रू ब्रांच BD। फाइंड द करेंट थ्रू ब्रांच BD, ये क्वेश्चन है। तो जब भी हम सर्किट, ऐसा एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आता है, कई सारे रेजिस्टेंस है, कई सारे सेल्स है, तो हम किर्चॉफ्स लूप लॉ अप्लाई करेंगे। यहाँ देखो इसके तरफ कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमको निकालना है। सपोज ये करंट I1 है, इस तरफ से I2 है, और ये है I3। ये करंट का डायरेक्शन तुम जैसे भी ले सकते हो, ऐसे या ऐसे, जो भी लोगे चलेगा, क्योंकि जब सॉल्यूशन निकलेगा करंट का वैल्यू नेगेटिव आया तो ये पता चल जाएगा कि करंट का डायरेक्शन हम अपोजिट लिए हैं। सपोज यहाँ I1 का वैल्यू -5 एम्पियर आया, तो पता चल जाता है कि I1 एक्चुअली इस डायरेक्शन में होना चाहिए, हम इस डायरेक्शन में ले गए, तो वो कोई आंसर में प्रॉब्लम नहीं डालेगा। तो ये I1, क्योंकि कन्वेंशन के हिसाब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से हम ले रहे हैं I1, यहाँ से I2 ले रहे हैं, यहाँ I3। सो दिस इज if we consider this point, because we have to find out the current through branch BD, so let us consider this to be the junction point. So here I1 current is going into it, here it is also coming towards, and this is going away. So पहला किर्चॉफ्स करंट लॉ यूज करेंगे, किर्चॉफ्स जंक्शन लॉ जब यूज करेंगे, KCL यूज करेंगे, तो हमको मिलेगा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। ये पहला इक्वेशन हमको मिल गया। अभी ये लूप लेते हैं, ABDA लूप ABDA। यहाँ मैं थोड़ा याद करा देता हूँ कि जब भी हम ABDA लूप ले रहे हैं तो यहाँ A से B के तरफ जा रहे हैं, मतलब
करंट जो डायरेक्शन में जा रहा है हम वही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वहाँ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जो निकलेगा, वोल्टेज ड्रॉप जो होगा, वो वोल्टेज ड्रॉप को हम नेगेटिव लेंगे, क्योंकि देखो करंट इस तरफ से इस तरफ जा रहा है, करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को जाता है, मतलब बी का पोटेंशियल लोअर है, ये हायर है, तो डिफरेंस क्या होगा, लोअर माइनस हायर, नेगेटिव आएगा, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप को नेगेटिव लेंगे। तो करंट का सेम डायरेक्शन में हम वोल्टेज ड्रॉप, करंट का सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम नेगेटिव लेंगे। और जब सेल को क्रॉस करेंगे, सेल को क्रॉस करने के बाद तुम देखोगे तुम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव जा रहे हो तो ईएमएफ को पॉजिटिव लोगे, और पॉजिटिव तुम्हारे जाने के बाद पॉजिटिव टर्मिनल फर्स्ट आ रहा है और नेगेटिव सेकंड में आ रहा है तो ईएमएफ को नेगेटिव लोगे। साइन कन्वेंशन ये है। करंट का सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव, और सेल का नेगेटिव से पॉजिटिव को जा रहे हो तो पॉजिटिव लोगे, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो नेगेटिव। तो ये लूप में साइन कन्वेंशन यूज होता है। तो पहले हम ए बी डी ए को लूप ए बी डी ए में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज करते हैं। ए से बी की तरफ जाने के बाद करंट के सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे। ये करंट I1 है और रेजिस्टेंस 6 है, तो V इज इक्वल टू RI, मतलब 6 इंटू I1, 6 इंटू I1, ये करंट का सेम डायरेक्शन तो नेगेटिव लेंगे। फिर B से D के तरफ अगेन करंट का सेम डायरेक्शन, सो माइनस 3I3। फिर जब D से A की तरफ जा रहे हैं, पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, तो ये प्लस 15 होगा, ये सम 0 है। सो एल्जेब्राइक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप एंड इज 0। सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 6I1 प्लस 3I3 इज इक्वल टू 15। तो 6I1 प्लस 3I3 इज इक्वल टू 15। यहाँ 3 कॉमन ले जाते हैं, 3 कॉमन लेने से ये हो जाएगा 2I1 प्लस I3 इज इक्वल टू 5। अभी I3 के जगह I1 प्लस I2 लिख लो, तो ये आ जाएगा 3I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 5। ये है हमारा इक्वेशन 2। अभी दूसरा लूप लेते हैं, BCDB लूप, BCDB। यहाँ B से C को जा रहे हैं, करंट का ऑपोजिट डायरेक्शन, तो प्लस लेंगे, प्लस 3I2। ये इसको क्रसिंग करने के बाद पहले पॉजिटिव टर्मिनल बाद में नेगेटिव, तो इसको नेगेटिव लेंगे, माइनस 30। यहाँ फिर से करंट का नेगेटिव ऑपोजिट में जा रहे हैं, तो इसको प्लस 3I3 लेंगे इज इक्वल टू 0, और 3I2 प्लस 3I3 इज इक्वल टू 30, और I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 10। अगेन I3 की जगह I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, तो मतलब I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 10। ये हुआ इक्वेशन 3। नाउ इसको सॉल्व करने से हमको I1 और I2 का वैल्यू मिल जाएगा। I1 I2 का वैल्यू डाल देने से I3 मिल जाएगा। तो यहाँ 3I1 है, यहाँ I1 है, यहाँ I2 है, ये यहाँ 2I2 है, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो इक्वेशन 2 हुआ हमारा 3I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 5, और इक्वेशन 3 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 3I1 प्लस 6I2 इज इक्वल टू 30। सॉल्व कर लो,
सब्ट्रैक्ट करते हैं 3i1 3i1 i2 माइनस 6i2 माइनस 5i2 इज इक्वल टू माइनस 25. सो i2 इज इक्वल टू 5 एम्पियर. यहाँ i2 5 एम्पियर निकला तो i2 का वैल्यू यहाँ डाल दो तो i1 निकल जाएगा. सो 3i1 प्लस 5 इज इक्वल टू 5. सो 3i1 इज इक्वल टू 5 माइनस 5 0. सो i1 इज 0. अभी i1 0 है, i2 5 है, तो i3 कितना आएगा? i3 इज इक्वल टू i1 प्लस i2. i1 की जगह 0, i2 की जगह 5. सो 5 है, मतलब यहाँ 5 एम्पियर करंट फ्लो. इसी तरह हम दूसरा प्रॉब्लम्स भी किरचॉफ्स लॉ का सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे. बाय.